Great morning, students. In the previous class, we have studied chapter number 2. The name of the chapter is Roman numerals. But in today's class, we will start with our new chapter. The name of the chapter is large numbers. As the name suggests, large numbers means bigger number. In the fourth class, you have studied about large number of 7 digits. In this class, we will study 8-digit number and 9-digit number. Name of the chapter is large number. Up to 10 crores. Now tell me, student, which is the largest number of 7 digits? Largest number of 7 digits is 99,99,999. If I add 1 to this number, then this will become 9 plus 1 is 10 and 1 will come here. This means 1 plus 9 is again 0 and 1 carry, this is also 0. 1 plus 9 is again 10, 1 will carry, 1 plus 0, again 1 plus 0 and here also 10. Now this number becomes a number of 8 digits. This is the greatest number of 7 digits and this number will become smallest number of 8 digits. This is the greatest number of 7 digits. This is the greatest number of 8 digits and this is known as 1 crore. This is 1 crore. This is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. Now students, we will know how to write these numbers according to their periods and places. That in which period, which place lies. We will discuss about this. And all this is discussed according to Indian place value chart. So we will learn the Indian place value chart first. Indian place value chart. In this place value chart, we have two things, periods and places. There are 4 periods in place value, Indian place value charts. Periods. Periods में हमारे कितने आएंगे? 4 periods आएंगे. This one is ones. After ones, it is 1000. This one lakh, and last one is crore. In ones, this one is divided into 3 parts. Ones, 3. Third one is, last one is ones, mean 1. Again this is 10 and this is 100. Now come to 1000. In 1000 it is 1000 and this is 10,000. In lakh, like 1000 it is lakh and 10 lakh. In crore it is crore and 10 crore. मतलब क्या है, हमारे पास जो पीरियड्स होते हैं उसमें 4 पीरियड्स होते हैं और जो हमारी ये वैल्यूज होती है ये क्या होते हैं हमारे प्लेसेस. 1 करोड़ के लिए 2 प्लेस, लाख के लिए भी 2, 1000 के लिए 2 और जो वंस वाला होता है लास्ट वाला उसके लिए हमारे 3 प्लेसेस होते हैं. 3 प्लेसेस कौन कौन से होते हैं? और
वंस, टेंस, 100, 1000 के लिए 1000, 10,000, लाख के लिए लाख, 10 लाख और करोड़ के लिए करोड़ और 10 करोड़। ये हमारे कितने प्लेसेस हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, these are the 9 places. This is ones. This complete is ones. This is tens. This is represented by O, this is T, and 100 by H. This by TH, 1000, and this one is TTH. Means 10,000. This is lakh L. This is TL. This is crore C, and this is TC. Okay? इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम ऐसे पढ़े लिखेंगे, क्या करेंगे कि हम इन नंबर को लिखेंगे कैसे, मतलब हमें कोई 8 डिजिट या 9 डिजिट का नंबर दे दे तो हमें उसको लिखना कैसे है, वो हम इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि उस नंबर को हम 4 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। 4 पीरियड्स में राइट साइड से वंस, टेंस, लाख एंड 1000। वंस के लिए 3 प्लेसेस, दैट मीन्स 3 प्लेसेस के बाद राइट से कॉमा लगेगा, फिर 2 प्लेसेस के बाद, फिर 2 और फिर लास्ट में 2। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू राइट अ नंबर इज 1 8 3 6 7 2 1 2 3। हमें क्या करना है, इस नंबर को लिखना है बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स। वी हैव टू राइट दिस नंबर बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स। पीरियड सेपरेट, ये और ऊपर वाले ये वाले हमारे क्या है, पीरियड्स। पीरियड्स है 4। इस नंबर को हमें 4 पीरियड्स में डिवाइड करना है, मीन्स वंस 3, जो लास्ट वाला वंस वाला है, टेंस वाला है और 100 वाला है। वंस, टेंस, 100 राइट साइड से शुरू करेंगे तो एक कोमा यहाँ, उसके बाद क्या कह रहे हैं 1000, 1000 के 1000, 10,000, ये 1000, ये 10,000, एक कोमा फिर यहाँ, फिर वो कह रहे हैं लाख के 2 पीरियड्स आएंगे, लाख एंड 10 लाख, लाख एंड 10 लाख, एंड लास्ट करोड़ एंड 10 करोड़। दिस इज करोड़ एंड दिस इज 10 करोड़, एंड लास्ट द नंबर इज 18 करोड़ 36 लाख 72,123। Okay students, this is how we write a number by using commas or by separating that number into periods. Okay students, I have told you how to write a number by separating into periods and how to call it in words, means 18 करोड़ 36 लाख 72,123। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसको पीरियड्स में सेपरेट करके कैसे लिखते हैं और उसको बोलते कैसे हैं वर्ड्स में। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए और वो बोल दे कि हमें इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना है बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स, वो कैसे करेंगे? जो अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था, सेम वही चार्ट बनाएंगे और कोई भी एक ऐसा नंबर दे दे, जैसे इफ आई राइट 29574, क्या है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अरेंज द डिजिट्स ऑफ दिस न्यूमरल इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट इट बाय सेपरेटिंग पीरियड्स। प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को प्लेस करना है और क्या करना है, पीरियड्स को सेपरेट करके इस नंबर को लिखना है, मींस इस नंबर को कोमास की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, गिवन न्यूमरल हमारे पीरियड्स क्या क्या थे, करोड़
lakh, thousand, and last one 1. ये 4 पीरियड्स है। हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। देखो ये वाला पार्ट क्या है, वंस, टेंस, 100, ये तो तीनों इसी में आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले तीनों हमारे इसी में आ जाएंगे, वंस, टेंस, 100। 2 इसमें आएंगे, 1000 और 10,000। 2 इसमें आएंगे, सॉरी lakh and 10 lakh, और 2 इसमें करोड़ और 10 करोड़। अब देखो वंस प्लेस पे क्या है 4, टेंस पे है 7 और 100 पे है 5। ऐसे ही देखो 1000 के लिए 9 है और 10,000 के लिए 2। इससे आगे कोई डिजिट्स है ही नहीं हमारे पास, तो दैट मीन्स हमारा 1000 तक ही आएगा। और हम इसको कैसे करेंगे, इसको कोमास में लगा के इसको सेपरेट करना है। कोमास क्या था, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, पहले राइट हैंड साइड के 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट, फिर से 2 और फिर से 2। इसको कोमास की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यूजिंग, एक और कॉलम बन जाएगा यूजिंग कोमास। कोमास की फॉर्म में आएगा तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर लिखेंगे और क्या करेंगे, लास्ट के 3 नंबर्स को छोड़ के कोमा और उससे आगे 2 है तो 2, तो क्या बन जाएगा ये 29,574, ठीक है। इसके बाद हम कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा क्या आता है कि हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको बोल के बताया 29,574, सेम इसको वर्ड्स में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 29,574। इसको हम ऐसे लिख देंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं जितना हमने अब तक किया है इनसे रिलेटेड। नाउ स्टूडेंट्स कम टू एक्सरसाइज 3। इन एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर्स हैं उनको हमें लिखना है, और किस चीज का यूज करके, कोमास का यूज करके, जो मैंने ये यहां बताया है इस फॉर्म में। फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, 623974। ये हमारा फर्स्ट नंबर है और इसको क्या करना है, हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पीरियड्स में सेपरेट करके लिखना है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या था, वंस, 1000, lakh एंड करोड़। वंस में 3 नंबर थे तो क्या था, लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं, मतलब राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स थे, पहले कोमा, ठीक है। 3 नंबर्स से पहले एक कोमा मीन्स यहां लगेगा वंस, टेंस, 1000, ठीक है। उसके बाद 2 मीन्स 1000 और 10,000, एक कोमा यहां और ये एज इट इज, ठीक है। तो ये नंबर क्या बन गया, 6,23,974। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, पार्ट एच। एच पार्ट में हमें क्या गिवन है, 9,0,0,0,4
5 zeros 1 ये पहले हम इसको काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मींस दिस इज ones tens 100 1000 10,000 this is lakh 10 lakh this is crore and this is 10 crore. So we have to divide this number into periods means ones tens 100 ये एक पीरियड में आएंगे तो यहाँ कॉमा फिर 1000 और 10,000 है वो दूसरे पीरियड में आएंगे वहां कॉमा फिर लैख और 10 लाख आएंगे एक पीरियड में फिर यहाँ कॉमा और लास्ट के पीरियड में आएंगे करोड़ एंड 10 करोड़. तो इस नंबर को कैसे लिख देंगे हम कॉमास में 10 करोड़ 100 दिस इज 10 करोड़ 100. Okay students, in the same way you can solve rest of the part of this question. Now come to question number 2. In question number 2 write the following numbers in words. क्या कह रहा है वो कि हमें क्वेश्चंस गिवन है इन कॉमास की फॉर्म में जैसे कि ये है इसको हमें वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है. इसको वर्ड्स की फॉर्म में क्या लिखेंगे 10 करोड़ 100. ठीक है. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उन सबको हमें वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट. इट इज 39 00 302. पहले क्या करेंगे हम इसको देखेंगे कि हमारे पास डिजिट्स कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7. We will write according to Indian place value chart. We have to write this number in words. This one is ones place. This is tens. This is 100. This is 1000. This is 10,000. This is lakh and this is 10 lakh. So this number is 39 lakh 302. जहां जो डिजिट मिसिंग है उसको नहीं बोलेंगे नहीं लिखेंगे. मीन्स यहां 2 जीरो है तो ये चीज उसमें नहीं आएगी वर्ड्स में. क्या लिखेंगे इसको 39 lakh 300 Okay students, it is written as 39 lakh 302. Okay, let us take another example. Part D. Part D is this. 3 digits 4 5 6 7 8 9. 9 digits we have. So write it as ones, tens, 100, 1000, 10,000. This is lakh. This is 10 lakh. This is crore. This is 10 crore. Okay. Now we have to write this number in words. The last one is 10 crore. Means this is 10 crore. These ones are 1000. 10 crore 53,109. 10 crore 53,109. In words, this number is written as 10 crore 53,000. Sorry, something is missing. It is here 53,109.
Now all the parts you have to solve by your own. I will tell you one more part. Part H. H is 10, 0, 1, again 0, 1 and last one is 1, 0, 0. इसको हमें वर्ड्स में लिखना है. देखो, दिस इज वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़. वंस, 100, sorry, tens, 100. This is 1000. This is 10,000. This one is lakh. This is 10 lakh. This is crore and this is 10 crore. Means 10 crore, 1 lakh, 1,100. The word form is that 10 crore, 1 lakh, 1,100. Okay, students? Now come to question number 3. In question number 3, we have to write the following numbers in figure. Question number 3, we have to write following numbers in the figure form. They have given the number in words. We have to write those numbers in figure. First one is 92,05,055. 92,05,055. He is saying 5,000. That means 10,000 वाले प्लेस पे 0, फिर 5,000 बाद में क्या आएगा 50. 92,05,000. 5,000 that means 10,000 वाला प्लेस 0 और फिर उसके बाद 55 मतलब 100 वाला प्लेस 0. और ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 92,05,055. ओके, अब इसमें कॉमास लगाएंगे तो कहाँ लगेंगे? लास्ट से 3 डिजिट्स, वंस, टेंस, 100 छोड़ के, फिर 1000, 10,000 और फिर बाद में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट H. 52 करोड़ 1,31,000. या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आता कई बारी, तो हम क्या कर लेंगे, हम पहले ये लिख लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. दिस वन इज लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. ओके. अब जैसे जैसे वो बोल रहे हैं हम वही लिख लेंगे. हम इसका H पार्ट देखते हैं. उसने बोला 52 करोड़. 52 मीन्स 5, 2. 52 करोड़, 2 बिलो करोड़ एंड 5 बिलो 10 करोड़. उसके बाद वो क्या बोल रहा है 15,000 मीन्स कहाँ है 15,000? 1000 ये और 10,000 के प्लेस में आएगा 15. यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1 और लास्ट में क्या बोला उसने 52 करोड़. ये सॉरी मैंने H पार्ट करा रही हूँ, मैंने G बोल दिया. H पार्ट में क्या था 52 करोड़ 1,31,000. 52 करोड़ 1 लाख. 1 लाख मीन्स यहाँ और उसके बाद 31. 31 मीन्स टेंस और वंस प्लेस. 52 करोड़ 1,31,000. बीच के जितने स्पेसेस बचे हैं वहां आ जाएगी हमारी 0. ठीक है. और इसको हम जब कॉमास के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लास्ट से 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2. 52 करोड़ 1,31,000. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे ही करना. पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये पहले ही लिख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. चलो एक और पार्ट मैं आपको बताती हूँ. पार्ट J. 10 करोड़ 10,000 11. 10 करोड़ 10 करोड़ मतलब यहाँ आएगा
उसके बाद बोल रहा है 10,000, यहाँ आएगा। उसके बाद बोल रहा है 11, वो आएगा यहाँ। बीच में जितने प्लेसेस बचे सब पे 0, तो ये आ गया हमारा ऐसे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स कॉमा, ये हमारा एक पीरियड, फिर 2 डिजिट्स, ये एक पीरियड, फिर 2 डिजिट, ये पीरियड, फिर ये भी पीरियड। ठीक है, जब हमारे 9 डिजिट नंबर होते हैं तो हमारे कितने पीरियड होते हैं? 4 पीरियड्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 10 crore 10,011। ओके, now that's all for today's. Thank you students.